See, today we are starting with the new lesson, that is chemical kinetics, lesson number 6. Name of the chapter is chemical kinetics. Now first we'll say what is the meaning of the term chemical kinetics. Now what is chemical kinetics here? It is a branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction and factor affecting this rate of reaction. Again here, what is chemical kinetics? It is a branch of chemistry. It deals with what? It deals with the rate of chemical reaction. It deals with the rate of chemical reaction. मतलब chemical reaction का speed, chemical reaction का progress क्या रहेगा, and the factors, कौन कौन से factors है, factor affecting this rate, कौन से factors है जो rate को कम ज्यादा कर सकते हैं. So हमारा जो पूरा चैप्टर है, एंटायर चैप्टर जो हमारा यहाँ पे है, किससे डील कर रहा है? इट डीलिंग विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब केमिकल रिएक्शन जब आप परफॉर्म करोगे, सम केमिकल रिएक्शंस आर स्लो, सम केमिकल रिएक्शंस आर फास्ट. सो व्हाट इज देयर एक्चुअल स्पीड? तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स है वो स्पीड को कम ज्यादा करेंगे. ओके, so what is chemical kinetics? It is a branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction and the factor affecting these rates of reaction. Okay, now we'll see what is the meaning of rate of reaction. So we'll see here the meaning of rate of reactions. अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में राइटिंग एज व्हाट? RxN. रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब्स how rapidly the reactant are consumed or products are formed. मतलब हम जब भी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन से हमें क्या पता चलेगा? हाउ रैपिडली, मतलब कितना फास्ट हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, मतलब कितने फास्ट हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है और कितने फास्ट हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. ओके, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से हमें क्या पता चलेगा कि हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट आर गेटिंग कंज्यूम और हाउ रैपिडली द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. मतलब कितने स्पीड में रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और कितने स्पीड में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. करेक्ट. तो अभी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, दो रेट ऑफ रिएक्शंस है. तो सबसे पहले वाला रेट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ reaction. The first one is average rate of reaction.
Now, what is average rate of reaction? First, I'll write the meaning of it. It is the change in concentration of reactant or product. It is the change in concentration of the reactant or product divided by the time interval, over which the change occurs. What is definition here? I'll explain the meaning. The average rate of reaction का meaning क्या होता है? तो it is the change in concentration of the reactant. मतलब जब हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, हमारा रिएक्शन जब चल रहा होगा, तो रिएक्शन जब चल रहा होगा तो क्या होगा? Concentration of the reactant will change and concentration of the product will also change. तो ये जो change in the concentration उसे क्या करना है? डिवाइड करना है हमें, divided by the time interval over which the change occurs. Time interval over which the change occurs. Correct? So what is average rate of reaction? It is a change in concentration of the reactant or the product divided by the time interval over which the change occurs. So we write the formula here. That is average rate is equal to change in concentration of a species divided by change in time. सेम है, मतलब जो मैंने डेफिनेशन में लिखा, डेफिनेशन में क्या लिखा था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, आइदर इट कैन बी रिएक्टेंट और इट कैन बी प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय व्हाट? द टाइम इंटरवल, और टाइम से डिवाइड कर. ओके, अब इसका यूनिट सिंपल फॉर्म में क्या लिखोगे? इसे कॉन्सेंट्रेशन क्या? चेंज, मतलब डेल्टा सी. डेल्टा मतलब चेंज in concentration divided by delta T. Delta T means what? Change in time. So difference in the concentration divided by the difference in the time. Difference in the concentration divided by the difference in the time. Correct? और फिर इसका यूनिट क्या आएगा? देखो यूनिट, अगर मुझे यूनिट लिखना रहेगा तो concentration normally we write in which unit? Mole. Concentration we write normally in which unit? Mole per dm cube. Concentration we write in which unit? Mole per dm cube. And time normally we can write in what? Seconds, or it can be in minutes, or it can be in hours. So concentration in mole per dm cube, the mole dm raised to -3, time is second. तो हमारे यहाँ पे यूनिट क्या लिख सकते हो आप? Mole per dm cube per second. Mole per dm cube per second. और इसे मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल पर डीएम क्यूब को क्या लिख सकते हो आप? पर लीटर पर सेकेंड. लेकिन सेकेंड्स यहाँ पे लिखा हो, इट कैन बी मिनट्स और इट कैन बी आवर्स. तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या लिखोगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है. These are the units of concentration. Sorry, these are the unit of
average rate. What is average rate? The change in the concentration of the reactant or a product divided by the time interval over which the change occurs. So change in the concentration is delta C and change in the time is what? Delta T. And what is the unit of average rate? Mole per dm cube per second और मोल पर लीटर पर सेकेंड. बट नॉर्मली यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला यूज करेंगे. ओके, नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट. सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ये हमारा यूनिट है. यूनिट ऑफ व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग. इसका ही मैं और एक्सप्लेनेशन देता हूं तुम्हें एवरेज रेट के लिए. Okay, suppose for example, I can say here, consider a reaction. एक reaction consider करो. कौन सा? Like suppose for example, A is getting converted into B. A is reactant, and during the reactant get consumed. B is a product, and during the reaction it get formed. Okay, so in this reaction, A is a reactant and B is a product. Reactant is getting consumed and product is getting formed. Correct. Now here, I just want to make one table where I'll write first column, I'll write time in second. Here I will write concentration of A matlab reactant, and here we'll write concentration of B. B means what? Product. Time. Now suppose initially, मतलब जब हम लोगों ने हमारे कंटेनर में खाली A था, मतलब जब हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमारे पास खाली A था और A का कॉन्सेंट्रेशन था 0.8 मोलार और B फॉर्म नहीं हुआ था तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था. मतलब जब हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया तब हमारे पास स्टार्टिंग ऑलवेज जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग टाइम हमेशा कितना लेना है? 0 लेना है. और इनिशियली हमारे पास A का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलार था और B फॉर्म नहीं हुआ था. उसके बाद आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद क्या देखा कि A रिएक्ट हुआ, A कंज्यूम हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द A हैज डिक्रीज. कितना डिक्रीज हुआ? 0.8 से 0.6 डिक्रीज हुआ. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हैज डिक्रीज और B का कॉन्सेंट्रेशन जो स्टार्टिंग में 0 था वो 0.2 मोलार मतलब 0.2 मोलार से बढ़ गया. मतलब ओके. उसके बाद और आगे 5 मिनट्स के बाद ना 10 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ? ये 0.4 मोलार हुआ और ये 0. मतलब ये डिक्रीज हुआ 0.6 से 0.4 और ये 0.2 से 0.4. एंड आफ्टर 15 सेकेंड्स ये 0.2 मोलार हुआ और ये 0.6 मोलार हुआ. हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि जैसे हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है टाइम के साथ वैसे क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग. जैसे हमारा रिएक्शन स्टार्टिंग में A कितना था? 0.8, बाद में 5 सेकेंड्स के बाद 0.6, 10 सेकेंड्स के बाद 0.4, 15 सेकेंड के बाद 0.2. तो जैसे टाइम आगे आगे बढ़ रहा है हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में. तो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, 0 था, लेकिन 5 सेकेंड्स के बाद कितना हुआ? 0.2 मोलार. 10 सेकेंड्स के बाद कितना हुआ? 0.4 मोलार. 15 सेकेंड्स के बाद कितना हुआ? 0.6. मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. मतलब रिएक्टेंट क्या होगा? कंज्यूम. और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म. ये हमारा है. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल रेट लेंगे. सो आई जस्ट राइट हियर एवरेज
rate of consumption of A. Average rate of consumption of A. Why consumption of A? Because A is the reactant. Reactant concentration decrease. Reactant क्या हो रहा है? Consume हो रहा है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा minus delta, change in delta, change in the concentration of A divided by the time taken for the change. That's हमारा formula था. What is the formula here? Average rate is equal to change in the concentration, मतलब delta C upon delta T. लेकिन अभी हमारा C मतलब A है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो रहा है? concentration of A, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिखा है. What is minus sign? तो minus sign indicates what? The negative sign. The negative sign indicates the concentration of reactant is decreasing with time. Negative sign का indicate कर रहा है. Negative sign indicates what? The concentration of the reactant is decreasing with the time. Okay, मतलब देखो ना, A का concentration decrease होते जा रहा है. A का concentration decrease होता है with the time. So negative sign यहाँ पे क्या indicate कर रहा है? Negative sign. The negative sign indicates the concentration of the reactant is decreasing with the time, but the rate of reaction is always positive. लेकिन हमारे रिएक्शन का रेट क्या रहेगा? पॉजिटिव. मतलब यहाँ पे जो हमें रेट मिलेगा, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए मिलेगा, लास्ट आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा. फॉर्मूला में माइनस साइन है. फॉर्मूला में माइनस साइन क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमारे ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन है. लेकिन तुम बोले कोई भी चीज का रेट निगेटिव कैसा हो सकता है? स्पीड, रिएक्शन का स्पीड फास्ट है वो स्लो होगा, लेकिन रिएक्शन का स्पीड निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं. तो इसका मतलब ये माइनस साइन क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आगे. लेकिन नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ यहाँ पे लगा हुआ है? बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम. टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. बट जो हमारा कंजम्पशन रेट ऑफ ए है, द रेट ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. करेक्ट. अभी एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखता हूं मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज अगर मैंने ये जो हमारा टाइम है इसे लेबल कर दिया मैंने T1 और ये टाइम को मैंने लेबल कर दिया T2. टाइम T1, टाइम T2. टाइम T1 पे हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन है C1 और ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा C2. मतलब 5 सेकेंड पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना था? 0.6 था ए का कॉन्सेंट्रेशन. और 10 सेकेंड्स पे हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.4 था. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे देखो, एवरेज रेट ऑफ consumption of A equal to average rate of consumption of A equal to, see what is here, minus, formula में minus sign, delta A मतलब what? Change in the concentration, and change is what? C2 minus C1. Final concentration minus initial concentration divided by delta T. Delta T means what? T2 minus T1. See here, average rate of consumption of A. What is A? Change in concentration of A. Change means what? Difference between the final concentration and initial concentration. T2 minus T1 equal to C2. What is the value of the C2 here? C2 is 0.4 and C1 is 0.6.
So already minus sign is there in the formula, and here I'll write 0.4 minus 0.6 divided by T2 minus T1. T2 is 10 and T1 is 5. T2 is 10 and T1 is 5. तो अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो माइनस, and then 0.4 minus 0.6 is minus 0.2 because 0.6 is a greater number than 0.4 divided by 5. 10 minus 5 is 5. And then here equal to, minus will get cancel, ये cancel हो जाएगा, और 0.2 upon 5 अगर आप करोगे तो आएगा 0.04 and unit क्या लिखोगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. यूनिट लिखोगे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. इसका मतलब हमारा जो ए था, ए क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है. कौन सी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, 0.04 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड के लिए, पर सेकेंड के लिए हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, 0.04 से कितना चेंज हो रहा है. और देखो आपका लास्ट में आंसर पॉजिटिव आ गया. आपका लास्ट का आंसर पॉजिटिव है. मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस साइन था, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस. सो अल्टीमेटली द रेट इज बिकम व्हाट, पॉजिटिव. तो यही बात मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि तुम सोचोगे कि कोई भी चीज का रेट नेगेटिव कैसा होगा, मतलब रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन स्लो होगा, रिएक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा. तो नेगेटिव डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा रहा है. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, the negative sign indicates what, the concentration of the reactant is decreasing with the time, but the rate of reaction is always going to be positive. तो ये हमारा reactant के साथ हुआ, reactant के साथ. अभी हम लोग करेंगे for product. बी के लिए देखेंगे. ओके, average rate of formation of B. B is a product. देखो हमारे यहाँ पे average rate of formation of the B. B is a product. Average rate of formation of B is what, plus delta B, delta change in the concentration. Delta मतलब change in the concentration of B upon time taken for the change. Equal to, now here we substitute the value. See, time T1 5, एक concentration C1. तो अभी इससे C1 प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है. देखो 5 सेकेंड्स में हमारा कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था और 10th सेकेंड पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन 0.4 था. तो हमारा C2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा मतलब डिफरेंस. डेल्टा का मतलब डिफरेंस बिटवीन द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T विल बी व्हाट, T2 माइनस T1. C2 आपका यहाँ पे 0.4 है, ये 0.2 है, 10 माइनस 5. तो 0.4 माइनस 0.2 कितना आएगा, 0.2 अपॉन 5. और ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 0.04 अगर डिवाइड करोगे तो. और यहाँ पे आएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. तो ओके, तो यहाँ पे क्या है, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बी, और हमारा फॉर्मेशन रेट कितना आ गया, 0.04 मोल पर डीएम. तो ये रेट पॉजिटिव था. तो हमें क्या लिखना है कि जब हम लोग रिएक्शन का रेट विथ रिस्पेक्टिव नेगेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू जब रिएक्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या साइन लेना है, माइनस. और जब हम लोग रिएक्शन का रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे साइन क्या लेना है, प्लस. तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज नेगेटिव, लेकिन फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आएगा. एंड रेट ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इज व्हाट, पॉजिटिव. ओके ओके, नाउ विल गो फॉर द, अभी यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया था एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए कितना आया था, 0.04 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. और एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना आया था, 0.04 मोल पर डीएम. दोनों रेट सेम, दोनों इक्वल क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे
नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ बी आर इक्वल, मतलब ए के मोल और बी के मोल दोनों मोल इक्वल है, और दोनों मोल इक्वल है इसीलिए कंजम्पशन रेट ऑफ ए and formation rate of B are equal. Okay, so I'll write here the next point. Since coefficient of A and B are equal, since coefficient of A and B are equal, rate of consumption of A and rate of formation of B are equal. मतलब दोनों का A और B का दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, और इसीलिए कंजम्पशन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी आर इक्वल. तो इसका कैसे हुआ, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, and both the rates are equal, so I can just write down here a rate of reaction is equal to minus delta A by delta T equal to plus delta B by delta T. एक दोनों रेट इक्वल किया, मतलब ये भी 0.04 था, ये भी 0.04 था, तो हमारे रिएक्शन का रेट भी कितना आएगा, 0.04 ही आएगा. क्योंकि इक्वल, दोनों रेट इक्वल क्यों थे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ बी आर इक्वल, इसीलिए हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर इक्वल. ओके, ये हुआ. अभी हमें एक एग्जांपल देखना है कि अगर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो हमें देखना है. एक मिनट, आई टर्न द पेज. if coefficient of reactant and product are not equal, मतलब अगर हमारे कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं रहेंगे देन क्या करना है. देखो पहले देखेंगे, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल देन the rates are divided by the coefficient of reactant एंड प्रोडक्ट. ये क्या पॉइंट है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो मतलब अगर हमारे यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि अगर हमारे कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास रेट्स है, रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम एक काम करेंगे, कंसीडर अ रिएक्शन. Consider reaction A plus 3B gives you 2C. Consider a reaction A plus 3B gives you 2C. यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है कि coefficient of A is 1, coefficient of B is 3 and coefficient of C is 1. So here we can say here that is coefficient of A is 1, coefficient of B
is 3. Coefficient of C is 2. मतलब इनके कोएफिशिएंट अलग अलग है. ये हुआ. The coefficient of the reactant and product are not equal. A का कोएफिशिएंट 1 है, B का कोएफिशिएंट 3 आ रहा है और C का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर when during reaction, और कैसे जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, when 1 mole of A consume, मतलब जब हम लोग रिएक्शन जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, if 1 mole of A is consumed, how many mole of B are going to get consumed? 3 mole. And how many mole of C are going to produce? 2 mole. तो when 1 mole of A is consumed, A के लिए consume क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि A and B रिएक्टेंट है, तो A and B क्या होंगे, यूज्ड होंगे, कंज्यूम होंगे, और C क्या होगा, फॉर्म होगा. तो when 1 mole of A is consumed, then 3 moles of B are consumed. 3 moles of B are consumed and 2 moles of C are formed. 2 moles of C are formed. मतलब अगर हम लोगों ने 1 mole of A अगर कंज्यूम कर लिया, 1 mole, तो how many mole of B we require? 3 moles of B are consumed and 2 moles of C are formed. ये रिलेशन मिलेगा. अभी यहाँ पे रिलेशन क्या था, देखो, A 1 mole of A, 1 mole of B. तो अगर 1 mole of A कंज्यूम होगा तो 1 mole of B प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए दोनों का रेट इक्वल था. लेकिन यहाँ पे अगर मोल्स अलग अलग कंज्यूम हो, रेट भी डिफरेंट रहेंगे. तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, thus rate of consumption of B, मतलब rate of consumption of B is 3 times the rate of consumption of A. The rate of consumption of B, मतलब हमारा B का जो कंजम्पशन रेट है, B का जो कंजम्पशन रेट है, मतलब कैसे लिखूंगा, कंजम्पशन मतलब माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B, सॉरी डेल्टा, rate of consumption of B divided by delta T is equal to what? 3 times consumption of A, तो minus delta A by delta T. ये हमारा रेट है. मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ जो B रहेगा वो 3 टाइम्स रहेगा ऑफ व्हाट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A. मतलब अगर हमने ऐसे, अगर हमारे इक्वेशन में नंबरिंग बैलेंस प्रॉपर नहीं रहेंगे, तो मतलब अगर हमारे पास इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर अलग अलग रहेंगे तो क्या हुआ, 1 मोल ऑफ A, 3 मोल्स ऑफ B एंड 2 मोल्स ऑफ C. तो पहला क्या दिखा, अगर 1 मोल ऑफ A रिएक्ट करेगा तो 3 मोल्स ऑफ B रिएक्ट करेंगे और 2 मोल्स ऑफ C फॉर्म होंगे. ये मोल्स के बारे में बताया. अब रेट्स के बारे में जब कंपैरिजन करोगे तो B का जो कंजम्पशन रेट है वो A के कितने कंपेयर रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा. द कंजम्पशन ऑफ B इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A. और दूसरा, the rate of formation of C, rate of formation of C, C का फॉर्मेशन रेट A के ट्वाइस रहेगा. The rate of formation of C is twice as the rate of consumption of A. मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन C, फॉर्मेशन ऑफ C है, मतलब क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C मतलब डेल्टा C बाय डेल्टा T इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ A माइनस
and how many times? Rate of formation of C is twice. Rate of formation of C is twice as the rate of consumption of A. तो twice मतलब कितना आएगा? 2 times, and यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा A by डेल्टा T. तो ये रिलेशन मिलेंगे. तो यहाँ पे एक रिलेशन मिला और यहाँ पे हमें एक रिलेशन. तो अलग अलग रेट्स मिले. मतलब कैसे होगा? मतलब एक ही रिएक्शन में कोई बोलेगा कि माइनस का मतलब कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज 3 times द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या बोलेगा? प्लस मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 2 times द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए. तो एक ही रिएक्शन में अलग अलग रेट बात करने से अच्छा हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा. देयरफॉर अलग अलग इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग इन डिफरेंट, मतलब अलग अलग रेट एक्सप्रेस करने से अच्छा देयरफॉर रेट कैन बी रिटन एज, देखो क्या लिखना है? रेट. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है कि द रेट आर डिवाइडेड बाय व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट. तो ए का कोएफिशिएंट 1 है, बी का कोएफिशिएंट 3 है और सी का कोएफिशिएंट 2 है. तो मैं अभी रेट कैसे लिखूंगा? देखो फिर इससे अच्छा, ए हमारा रिएक्टेंट है तो लिखूंगा माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी. बी भी हमारा रिएक्टेंट है लेकिन बी का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं 3 कैसे लिखूंगा? माइनस 1/3 डेल्टा बी डेल्टा टी इक्वल टू सी हमारा प्रोडक्ट है तो सी प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? प्लस, और उसका कोएफिशिएंट 2 है तो क्या लिखोगे? 1/2 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. तो ये हमारा, दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेट. इसमें सारे रेट्स आपके इक्वल बने, इसमें सारे रेट्स आपके इक्वल. तो आपको क्या करना है? ऐसे अलग अलग रेट की बात करने से अच्छा आपका इक्वेशन देखना है. क्या इक्वेशन था? a प्लस 3b प्लस 2c. तो 3 को लिखना है 1/3, 2 को लिखना है 1/2, रिएक्टेंट के लिए लिखना है माइनस साइन और प्रोडक्ट के लिए लिखना है प्लस साइन. देखो यहाँ पे बराबर रेट ऑफ रिएक्शन इज, रिएक्टेंट है ए एंड बी, इसे दोनों के लिए माइनस है. ए को कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. बी का कोएफिशिएंट 3 था तो माइनस 1/3 एंड सी के लिए 1/2. देखो ना, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये 3 इधर चला जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 डी बी डेल्टा बाय डेल्टा टी, 1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा. और अगर ये 2 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 1/2 डी सी बाय डी टी. तो यहाँ पे क्या मिला? 1/2 डेल्टा सी बाय डेल्टा. तो ये मीनिंग सबका सेम हो गया. करेक्ट. तो ये हमारा रेट्स है. फिर अगर 3 यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी. यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी है. जब 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 1/2 आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी. तो आ रहा है मतलब ऑल रेट्स आर इक्वल. तो ऑलवेज ध्यान में हमें क्या रखना है, इसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि हियर if coefficient of reactant and product are not equal नहीं रहेंगे, then the rates are divided by the coefficient of the reactant and the product. हमारे पास जो रेट्स है उस रेट्स को कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और कोएफिशिएंट प्रोडक्ट से क्या करो? डिवाइड करो. तो ये हमारा बनेगा एवरेज रेट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ऐसा लिख सकते हो. ओके. तो अभी हमने एवरेज रेट के बारे में बात कर दिया. अभी नाउ नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेट, दैट इज, आपको यहाँ पे कोई डाउट है? एवरेज रेट तक. हॅलो सर. येस सर, ते इक्वल कसे काय आले रेट? मी तो नंतर दाखवतो, जेव्हा न्यूमरिकल सॉल्व करू ना तेव्हा मी न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला दाखवेन. हा ठीक आहे. हा, ते न्यूमरिकल मध्ये चांगलं समजेल. फक्त काय करायचं आपल्याला? कोएफिशिएंटने डिवाइड करायचं. कोएफिशिएंटने डिवाइड केले की सगळे रेट्स इक्वल होतात. ते कसे ते न्यूमरिकल मध्ये दाखवतो. आज आपले न्यूमरिकल नाही होणार, पुढच्या लेक्चरला आपण न्यूमरिकल करू. चालेल? हा सर. हा, तोपर्यंत थेरी पार्ट फक्त लक्षात ठेवा.
Fifth, now we are going for second rate. The second one is instantaneous rate. The first we have seen the average rate, and now second we are going for what? Instantaneous rate. Now what is instantaneous rate? Instantaneous, the rate of reaction at a particular instant, rate of reaction at particular instant or at a particular time is called as instantaneous rate of reaction, is called as instantaneous rate of reaction. मतलब अगर हम लोग अभी यहाँ पे कैसे किया था, हम लोगों ने जब रेट फाइंड आउट किया था, हमने टाइम इंटरवल लिया था 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक. तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि नहीं मुझे 5 to 10 सेकेंड के लिए रेट नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 10 सेकेंड पे रेट कितना रहेगा वो बोल दो. एग्जैक्टली 10 सेकेंड पे रिएक्शन का रेट कितना रहेगा वो बोल दो, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट. मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम को मतलब हमारा रिएक्शन देखो चालू हो गए कितना टाइम तक चल रहा है, 15 सेकेंड तक चल रहा है. तो कोई मुझे बोलेगा कि नहीं मुझे एग्जैक्टली 15वें सेकेंड पे एट द एंड ऑफ द 15 सेकेंड हमारे रिएक्शन का रेट कितना रहेगा वो बोल दो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. उसे क्या बोलोगे आप? इंस्टेंटेनियस रेट. मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम को लेके अगर रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस रेट. ओके, सो द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular instant or a particular time is called as the instantaneous rate. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, to find instantaneous rate, the concentration of reactant or products are plotted against time. हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो मेरे पास है या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट क्या प्लॉट करना पड़ेगा अगेंस्ट द टाइम. मतलब कैसे? मतलब जैसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. फर्स्ट ग्राफ, on the x-axis I can take the time and on the y-axis I can write here that is 1 minute reactant concentration. देखो यहाँ पे टाइम लिया और यहाँ पे क्या मैंने लिखा? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो देखो अगर ग्राफ देखोगे, जब हम लोग ने रिएक्शन स्टार्ट किया था तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन 0.8 था. 5 सेकेंड के बाद 0.6 हुआ, 10 सेकेंड के बाद 0.4 हुआ और 15 सेकेंड के बाद 0. मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो मेरा ग्राफ ऐसे आएगा. मतलब स्टार्टिंग में ये टाइम है, अगर मैंने बोला कि टाइम 5, 10, 15, 20 ऐसे टाइम इज इन सेकेंड. अगर मैंने लिखा कि टाइम इन सेकेंड 5, 10, 15, 20, तो 5 पे कितना था? 0.8. 10 पे कितना था? 0.4. मतलब कम कम होता है. ग्राफ ऐसा है. लेकिन अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया यहाँ पे टाइम वर्सेस प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या था? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. अगर क्लियर नहीं तो मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ. यहाँ पे था रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन.
यहाँ पे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट का देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट कितना था, 0 था, फिर 0 से कितना बना 0.2, फिर बाद में 0.4, फिर बाद में 0.6। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 0 था। ये ग्राफ हमारा ऐसा ग्राफ है। मतलब अगर आप रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो लोअर कर्व आएगा, और अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे तो आपको अपर कर्व मिलेगा। ये हमें कर्व मिले पहले। किसका हम लोगों ने किया कि हमारे पास जो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का डेटा था, और टाइम के साथ हमारे पास प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का जो डेटा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ग्राफ प्लॉट कर दिया। जैसे हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल में आप ग्राफ प्लॉट करते हो। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। ओके, अब ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट, हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट is drawn to the curve at a particular time t1। अभी हम क्या करेंगे, इस कर्व को क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा कि 10 सेकेंड्स पे एग्जैक्टली रेट कितना था, तो मैं क्या करूंगा, 10 सेकेंड पे अगर मुझे रेट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं इसे 10 सेकेंड के लिए क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस अगर मुझे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 10 और यहाँ पे 50, अगर मुझे कोई बोलेगा, मतलब मैंने यहाँ पे टाइम t1 लिया है, तो यहाँ पे रेट कितना रहेगा, यहाँ पे 10 सेकेंड पे, तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट। ऐसा मतलब जिस टाइम के लिए आपको इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करना है, उस टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब हमारा जो कर्व है, उस कर्व को मुझे फाइंड आउट करना था रेट एट विच सेकेंड, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे भी मुझे फाइंड आउट करना है 10 सेकेंड के लिए, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। So the tangent is drawn to the curve at a particular time. उसके बाद the slope of tangent is calculated. Slope of the tangent is calculated, and the slope of tangent gives instantaneous rate of reaction at time t1। फिर हम लोग इस ग्राफ को, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। तो y2 माइनस y1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम, एंड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मतलब क्या मिलेगा, रेट। यहाँ पे भी आपको इस ग्राफ का क्या निकलना पड़ेगा, स्लोप के लिए क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, y2 माइनस y1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, x2 माइनस x मतलब टाइम, एंड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और हमें यहाँ पे देखा था कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट। लेकिन हमारे यहाँ पे कौन सा रेट हमें मेजर करे, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। करेक्ट। हमने क्या क्या देखो, पहले देखो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular instant or at a particular time is called as a instantaneous rate of reaction. How to find out the instantaneous rate? The first thing, the available concentration, time concentration data plot kar. Concentration of the reactant or a product are plotted against the time. फिर हमें प्लॉट करने के बाद क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा एट पर्टिकुलर टाइम पे, और उस टेंजेंट का हमें क्या करना है, स्लोप। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज
Slope of tangent gives what? Instantaneous rate of reaction. Slope of tangent gives the instantaneous rate of reaction at time t1. स्लोप हमें प्रोवाइड करेगा. ओके, तो ये हमें इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस का मतलब पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा स्पीड कितना रहेगा. अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बात करना है. एक मिनट. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन केमिकल काइनेटिक्स we are concerned with इंस्टेंटेनियस रेट. मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जब भी मेजर करेंगे तो हम कौन सा रेट मेजर करेंगे? हमेशा इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा. क्योंकि एवरेज रेट के लिए क्या था? टाइम इंटरवल था 5 से लेके 10 तक, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए क्या था? एग्जैक्टली 10 सेकेंड था. इसलिए मतलब दोनों रेट में, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस में एक्यूरेट कौन रहेगा? इंस्टेंटेनियस रहेगा. इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में हमें जब भी रेट फाइंड आउट करना रहेगा, हम कौन सा रेट फाइंड आउट करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो हम लोग बार बार इंस्टेंटेनियस रेट नहीं बोलेंगे. तो देयरफॉर when we say the rate of reaction, when we say we are calculating the rate of reaction, this is the rate of the reaction, whatever it is, when we say rate of reaction, it is understood that we are talking about instantaneous rate. मतलब आगे चल के मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा कि ये इंस्टेंटेनियस रेट है. अगर मैंने खाली वहां पे रेट खाली ऐसा लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखा, तो मैंने अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी वहां पे लिखा रहेगा तो अंडरस्टूड है मैं कौन सी रेट की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट. मतलब इन केमिकल काइनेटिक्स वी आर कंसर्न्ड विथ व्हाट? हमेशा किसके बारे में हमें कंसर्न रहेगा? इंस्टेंट. ये रेट हमारा एक्यूरेट रहेगा. So every time we cannot use the word instantaneous. I will use only the word as what? Rate of reaction. लेकिन तुम्हें मालूम रहेगा कि मैं rate of reaction जब बात कर रहा हूँ, मतलब I am talking about which rate? Instantaneous rate. I am talking about instantaneous rate. अभी यहाँ पे भी सेम है. देखो, आज थोड़ा लेक्चर थोड़ा आगे चला जाएगा, लेकिन ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करने दो. Consider the reaction. A gives you B. A gives you B. अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट, लेकिन मैं सिंपली क्या लिखूंगा? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए. मैंने खाली रेट लिखा, बट रेट मतलब विच रेट? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस. सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, मतलब मालूम है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर. क्या लिखूंगा मैं? रिएक्टेंट है तो क्या लिखूंगा? साइन माइनस. लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डी ए बाई डी टी, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है लार्ज इंटरवल और स्मॉल डी का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस. क्योंकि जब मैं रिएक्शन का रेट मेजर करूंगा 10 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड मतलब 10.00 समथिंग होगा. तो डिफरेंस बिटवीन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल. तो इसीलिए जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करोगे तो यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा. क्या आएगा? डी आएगा, स्मॉल डी. सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बोलूंगा तो अभी मैंने यहाँ पे खाली रेट लिखा है. रेट मतलब कौन से रेट की बात करोगे आप? इंस्टेंटेनियस की बात करोगे. बार बार इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी इज अ प्रोडक्ट.
तो क्या साइन लिखोगे आप, प्लस dB बाई dt, dB बाई dt। तो यहाँ पे हमारे जब हम लोगों ने एवरेज रेट लिखा था तो एवरेज के लिए यहाँ पे डेल्टा था, डेल्टा का मतलब टाइम इंटरवल बड़ा था, लेकिन व्हेन यू राइट स्मॉल डी का मतलब टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए ये लिखना है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ए का कोएफिशिएंट भी 1 है, बी का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर इक्वल। आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब अगेन विच रेट, instantaneous rate is equal to minus dA by dt equal to plus dB by dt, minus dA by dt is equal to plus dB by dt। ओके, ये हो। अगर अभी अभी हमें देखना है कि सपोज हमारे पास रिएक्शन रहेगा, फॉर एग्जांपल सेम रिएक्शन A plus 3B gives you 2C। अगर ऐसा तो यहाँ पे क्या रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, तो सिंपली क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इज इक्वल टू रिएक्टेंट है तो माइनस dA बाई dt इक्वल टू, ये बी भी रिएक्टेंट है लेकिन कोएफिशिएंट 3 है तो क्या लिखोगे, माइनस 1/3 dB बाई dt। मतलब अगर हमारे कोएफिशिएंट डिफरेंट रहेंगे तो कोएफिशिएंट से क्या करना है, रेट को डिवाइड करना। यहाँ पे 1 था इसलिए प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 3 था सो 3 से डिवाइड कर दो और इक्वल टू ये यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 1/2 dC बाई dt, हाफ dC बाई dt। मतलब तुम्हें सिंपल क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमारे कोएफिशिएंट इक्वल नहीं रहेंगे नहीं, या जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट से रेट को डिवाइड करो। ये dA बाई dt, यहाँ पे dB बाई dt को 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे dC बाई dt को 2 से डिवाइड कर दिया। रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस साइन और प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस साइन। ओके, और इसके लिए एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2N2O gives you 4NO2 plus O2, ये इक्वेशन, उसके लिए लिखना है रेट लिखना है। तो रेट क्या आएगा, देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू रिएक्टेंट तो -1/2 dN2O बाई dt, यस, इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो क्या लिखेगा, प्लस 1/4 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 प्लस DO2 बाई dt। करेक्ट, मतलब क्या किया हम लोगों ने, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, प्रोडक्ट के लिए प्लस। जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट से रेट को क्या करो, डिवाइड करो। करेक्ट, सो इन जनरल अगर हमारे पास रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D, इसमें क्या होगा, कैपिटल A and B are the reactant, कैपिटल C and D are the product and small a b c d are the coefficient। क्या लिखोगे हियर, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एक बार लास्ट लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू ये ए तो यहाँ पे आएगा -1/a dA बाई dt इक्वल टू माइनस dB -1/b dB बाई dt, क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट है इसलिए उनका माइनस साइन आएगा, उसके लिए इनको माइनस साइन आएगा और ए स्मॉल ए एंड बी कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, इक्वल टू प्लस 1/c dC बाई dt 1/d dd बाई dt। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बने, ये हमारा एक्सप्रेशन। तो ये हमारे आज हमने क्या किया, 3 टॉपिक किए,
एक सबसे पहले हमने किया व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन. और हमारे पास दो रेट्स है, पहला था एवरेज रेट और दूसरा था इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल ड्यूरेशन, एंड इंस्टेंटेनियस का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. करेक्ट. तो ये हम लोगों ने देखा. ये जो रेट्स वगैरह इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं, हम लोग बात के मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल के साथ. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अभी कुछ आपको डाउट है क्या, पूछना है आपको? यस. नो सर.